Good morning, student. Myself Chirag Sukani from Rafael BBA College Vapi, and I'm going to teach you financial management subject. Now, in last video, we discussed about the net present value method. Now, what is net present value method? Net present value method calculate the present value of the future cash flow, which is arrived at by discounting at certain rate of return. And how it is found out? It is found out by the difference between present value of the cash inflow and the initial investment. So today in this session we will discuss the second technique, that is internal rate of return method, that is IRR. Okay, that is internal rate of return method, IRR. So first of all, what is IRR? Now internal rate of return, it is what? It is a rate. It is a rate which equate present value of the future net cash flow with the initial investment. It means what? It shows a particular rate कि जहां पे present value of inflow and outflow equal होगा. इनिशियल इन्वेस्टमेंट इज नथिंग बट आउटफ्लो ना. ओके, यानी कितने रेट पे, कौन से रेट पे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द इनफ्लो एंड द आउटफ्लो आर इक्वल. क्लियर? सो व्हाट इज इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न? Internal rate of return, it is a rate which equate present value of the future net cash flow with the initial investment, and initial investment is nothing but outflow. It means what? It calculate the rate where present value of the inflow and the outflow are equal. Clear? Now IRR method also consider the time value of money, जस्ट लाइक नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड. ओके, इसलिए डिस्काउंटिंग टेक्निक मेथड है ना. सो IRR मेथड ऑल्सो कंसिडर द टाइम वैल्यू ऑफ मनी by the discounting the future cash flow as it is done in the net present value method, but the discount rate in these two methods are different. ओके, सो IRR मेथड भी नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड की तरह ही है, जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर करता है एंड फ्यूचर कैश फ्लो को डिस्काउंट करता है. बट जो डिस्काउंट रेट है वो दोनों मेथड में डिफरेंट है. नाउ इन केस ऑफ नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड, डिस्काउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न इट इज फिक्स्ड बाय द फाइनेंस मैनेजर इन एडवांस एंड प्रेजेंट वैल्यूज आर फाउंड आउट ऑन दैट बेसिस. ओके, सो नेट प्रेजेंट वैल्यू में जो डिस्काउंट रेट है वो फाइनेंस मैनेजर फिक्स करता है बेस्ड ऑन द मार्केट डिमांड, सप्लाई, इन्फ्लेशन, ओवरऑल इकोनॉमिक कंडीशन, ये सब ध्यान में रख के करता है एनपीए मेथड में. एंड जो ये फाइनेंस मैनेजर रेट ऑफ डिस्काउंट डिसाइड करेगा उसके बेसिस पे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कैश फ्लोस आर फाउंड आउट. वाइल in the case of net internal rate of return method, that is IRR method, it is not fixed but it is found out with the help of trial and error method. Okay, so that present value of the all cash inflow and the present value of the cash outflow become equal. तो यहाँ पे in brief आपको किसे समझ में आया ना कि जो नेट प्रेजेंट वैल्यू में जो डिस्काउंट रेट है जो फ्यूचर कैश फ्लो को कन्वर्ट करना इनटू प्रेजेंट वैल्यू, तो इसके लिए हम लोग डिस्काउंट रेट यूज करते हैं. सो नेट प्रेजेंट वैल्यू में जो डिस्काउंट रेट है ना वो फाइनेंस मैनेजर फिक्स करता है इन एडवांस एंड उसके बेसिस पे प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट किया जाता है. बट इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न में वो डिस्काउंट रेट फिक्स नहीं होता है. वो रेट कैसे डिसाइड होता है? इट इज फाउंड आउट विद द हेल्प ऑफ ट्रायल एंड एरर मेथड, so that present value of the all cash inflow is equal to the present value of the outflow. Clear? Now what is the procedures of trial and error method? Now the procedure of trial and error method is what? The procedure of trial and error method is that first of all to select some arbitrary rate of interest and on that basis present value of the cash inflow during life of the project is found out. ओके, सो पहले क्या करना है, आपको कोई भी एक आर्बिट्ररी रेट ऑफ डिस्काउंट सिलेक्ट कर देना. आर्बिट्ररी कोई भी, फॉर एग्जांपल 10%, 12%, 8%, 9%, 6%, एनी रेट आपको डिसाइड करना है. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल टू सिलेक्ट सम आर्बिट्ररी रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड वो रेट पे आपको प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कैश इनफ्लो आपको फाइंड आउट करना है. Now, if present value is higher than the amount of investment, अगर आपका present value
हाई आया एज कंपेयर टू इन्वेस्टमेंट, देन वी ट्राई अनदर हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट। से एग्जाम्पल 10% पे अगर प्रेजेंट वैल्यू हाई आया एज कंपेयर टू इन्वेस्टमेंट, हमारा IRR क्या होता है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द इनफ्लो एंड इन्वेस्टमेंट इक्वल होना चाहिए। बट अगर आपका IRR हाई आया, सॉरी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट इज हायर आया एज कंपेयर टू द इनिशियल इन्वेस्टमेंट, ओके, तो हम लोग को नया रेट फाइंड आउट करना पड़ेगा। ओके, सो वी ट्राई अनदर हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट, हाई आया तो हाई, लो आया तो लो इंटरेस्ट, ऐसा होगा। ओके, सो इफ present value of the present value is higher than the amount of investment, then we try another higher rate of interest। ये प्रोसीजर चालू रखना है सो दैट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कैश फ्लो बिकम्स इक्वल टू द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट। ओके, इट मीन्स वो ट्राई 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 करते रहना है। कब तक ट्राई करना है, जब तक आपका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द इनफ्लो एंड द इन्वेस्टमेंट इक्वल ना हो जाए। So in general, with the help of trial and error method, we can get two discount rate and internal rate of return is found out with the help of following formula. Okay. So with the help of trial and error method, we can get two discount rate. एक पे आपका पॉजिटिव एनपीवी आएगा और एक रेट पे आपका नेगेटिव एनपीवी आएगा, एंड इन बिटवीन आपका डिस्काउंट रेट दैट इज इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न डिसाइड होगा। क्लियर? सो अगर टू रेट आया विद द हेल्प ऑफ ट्रायल एंड मेथड वी कैन गेट द टू डिस्काउंट रेट ना। सो टू डिस्काउंट रेट में अप्रोक्सीमेट IRR फाइंड आउट करने के लिए दिस फॉर्मूला इज यूज्ड। सो IRR इज व्हाट, A प्लस C अपॉन C प्लस D इंटू B माइनस A। हियर A इज व्हाट, लोअर रेट ऑफ डिस्काउंट। से एग्जाम्पल आपका एक 10% आया एंड एक 11% आया, ओके, दो रेट आया। नाउ A इज व्हाट, लोअर रेट ऑफ डिस्काउंट यानी 10%, B यानी हायर रेट ऑफ डिस्काउंट यानी 11%, C एक्सेस ऑफ प्रेजेंट वैल्यू एट लोअर रेट यानी 10% पे आपका प्रेजेंट वैल्यू प्लस आएगा, दैट इज व्हाट एक्सेस। ओके, एंड डी इज व्हाट, शॉर्टफॉल इन प्रेजेंट वैल्यू एट हायर रेट, यहाँ पे याद करके लिखना है हायर रेट है। सो 11% पर हायर रेट है, शॉर्टफॉल यानी आपका नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या आएगा, माइनस में आएगा। सो एक लोअर रेट पे आपका पॉजिटिव एनपीवी आएगा एंड हायर रेट पे नेगेटिव एनपीवी आएगा, एंड इन बिटवीन आपका IRR डिसाइड होगा विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। जब हम सम्स करेंगे तो अगेन क्लियरली होगा। यहां तक समझ में आएगा? Now, what are the accept reject criteria with the help of IRR method? Now, in IRR method, it is also cutoff rate is determined. Such cutoff rate may be equal to the cost of capital. Now, IRR method में भी cutoff rate decide होता है, but वो cutoff rate क्या होता है? This cutoff rate may be equal to cost of capital. And cost of capital क्या होता है? जो भी cost पे किया जाता है जब फर्म कैपिटल को रेज करते हैं। से एग्जाम्पल बैंक से मनी रेज किया, इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, दैट इज व्हाट कॉस्ट। ओके, देन शेयर से इश्यू किया तो डिविडेंड पे करना पड़ेगा, दैट इज व्हाट कॉस्ट। सो वॉट एवर कॉस्ट पेड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द फंड फ्रॉम द मार्केट, दैट इज व्हाट कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सो IRR मेथड में वो कट ऑफ रेट क्या होता है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल or the highest rate of interest on borrowed capital. Okay, so when we accept the project with the help of IRR method, if IRR is greater than or equal to K, यानी cost of capital and internal rate of return equal आया और more than आया तो accept करना है, but reject करना है project if IRR is less than K, यानी आपका rate of return कम आ रहा है as compared to cost, तो कभी प्रॉफिटेबल नहीं रहेगा। सो इट इज बेटर टू रिजेक्ट द प्रोजेक्ट। ओके, सो एक्सेप्ट कब करना है, व्हेन IRR इज ग्रेटर देन और इक्वल टू K, एंड रिजेक्ट कब करना है, व्हेन IRR इज लेसर देन K। दिस इज व्हाट एक्सेप्ट और रिजेक्ट क्राइटेरिया। नाउ मेरिट्स और एडवांटेज ऑफ IRR। नाउ इट इज सेम एज ऑफ व्हाट NPV मेथड। NPV मेथड में जो मेरिट्स और डीमेरिट्स है ना, सब सेम जैसा ही लगेगा आपको,
First is what? It consider time value of money, but obvious. It consider entire cash flow, which is spread over life of the projects. Okay. Then it is consistent with the overall objective of maximizing the shareholders' wealth, because this is a discounting method, जो accurate method है सब. ओके, सो ये टाइम वैल्यू को मनी को कंसिडर करता है, एंटायर कैश फ्लो को कंसिडर करता है. देन उसका मेन ऑब्जेक्टिव दैट इज मैक्सिमाइजिंग द शेयर होल्डर्स वेल्थ. देन it measure the profitability because entire cash flow over entire life of the projects are considered. So it is same as of what? NPV जैसा ही है. Then next is what? Demerits or disadvantage of IRR. फर्स्ट डीमेरिट्स, यहाँ डीमेरिट्स भी सेम ही लगेगा आपको. द कंप्यूटेशन ऑफ IRR बिकम्स क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड बिकॉज दे आर बेस्ड ऑन ट्रायल एंड एरर मेथड. आपको ट्राई करते रहना, ट्राई करते रहना, ट्राई करते रहना. कब तक ट्राई करना है? जब तक आपका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द इनफ्लो एंड द इन्वेस्टमेंट इक्वल ना हो जाए. सो उसका प्रोसीजर्स लेंदी रहता है. सो कंप्यूटेशन कैलकुलेट करना इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, इट बिकम्स क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड बिकॉज दे आर बेस्ड ऑन ट्रायल एंड एरर मेथड. Second, it require estimation of the cash inflow and the cash outflow, which is a difficult task because आपको हर एक ईयर का इनफ्लो भी चाहिए, आउटफ्लो भी चाहिए. सो उसको एस्टिमेट करना कि पर ईयर का इनफ्लो क्या आएगा, इट इज़ वेरी मच डिफिकल्ट टास्क. थर्ड, if there is a difference in economic life, size of investment and timing of the cash flow, this method cannot give the result which is consistent with NPV. ओके, सो अगर प्रोजेक्ट्स में इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट्स डिफरेंट हो, साइज ऑफ इन्वेस्टमेंट डिफरेंट हो, टाइमिंग ऑफ कैश फ्लोस डिफरेंट हो, सो वो केसेस में IRR मेथड एक्यूरेट रिजल्ट नहीं देता है. एंड फोर्थ लिमिटेशन, द assumptions that net cash flow of every year is reinvested in the business at the same internal rate of return may not be true in all the cases. यानी IRR इट इज बेस्ड ऑन एजम्पशन कि जो फर्स्ट ईयर का जो कैश फ्लो आया वो री इन्वेस्ट करना है एट सम हायर रेट ऑफ रिटर्न से. ओके, सॉरी, दैट इज व्हाट एजम्पशन से कि नेट कैश फ्लो ऑफ एवरी ईयर इज री इन्वेस्टेड इन द बिजनेस एट द सेम इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न. सेम रेट पे आप री इन्वेस्टमेंट करते जाते हो, ये पॉसिबल नहीं है. ऑलवेज क्या होता है, एक बार आप री इन्वेस्ट करते हो तो सेकंड ईयर में हायर रेट से री इन्वेस्ट करते हो, थर्ड ईयर में और हायर रेट से नहीं इन्वेस्ट करते हो. बट यहाँ पे एजम्पशन है कि सेम रेट पे री इन्वेस्ट करना, इट इज़ नॉट ट्रू. ओके, सो दिस आर द लिमिटेशंस ऑफ द इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड. यहाँ तक समझ में आया? सो ये हम लोग का कंप्लीट हुआ इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड. क्लियर? नाउ नेक्स्ट प्रॉफिटेबल इंडेक्स, नेक्स्ट टेक्निक इन द नेक्स्ट वीडियो.